Hello and welcome to Auto Easy. Today we're going to talk about this, the Hyundai Accent. So this is a 2015 Hyundai Accent which came after the successful run of Accent. So Hyundai wanted to get that same success with the Hyundai Accent, but unfortunately it was not that successful as its predecessor. But let's not get into this. This is a 2015 variant of the Accent. This specific car is a 1.2 liter variant and this is S variant. So let's pop the hood. So this is the 1.2 liter tried and tested Kappa motor. As you can see, it's been neatly packed and it's been tightly packed, so there is no much hollow spaces. You can see it's a tried and tested motor. It came in Venue, Creta, Hyundai Accent, Grand i10 and even in the i20. So there is no such reliability issues, as this car is very much used by the fleet owners, I mean the taxi owners. So you can't go wrong with this thing, as the fleet owners normally prefer cars which are low on maintenance. So as you can see, this is being used by all the Ola Uber drivers. So there is no as such issue with the 1.2 liter motor as they have driven around. I have seen personally cars which have been driven around 3 lakh or 4 lakh kilometers with the CNG on, or even with the pure petrols. And even the 1.1 liter CRDI motor is quite fuel efficient. That's why it's been used by the fleet owners. So this is how the exterior looks like. This car is a sub 4 meter car. The length of the car is 3995 mm. 1660 mm is the width. 1520 mm is the height of the car. 165 mm is the ground clearance. And the wheelbase is 2425 mm. That's why the space inside the car is quite good, which we will talk about it later. As you can see, the window line, it's quite big, so you feel quite airy. That's how the rear looks like. It's a boxy design. I won't say this is being liked by everyone, but it looks good. It ages well. The new Accent, the facelift variant, Hyundai tried to do some magic, but it failed. And the current Aura also is on the same shell, but the numbers don't reflect on the sales figure. This is how the exterior looks like. There is no chrome on this, as this is the S variant, mid variant. You can get these indicators on the ORVMs, the VT badging. This is the tire. It's a 14 I guess, yes, it's 14 inches tire. It's a 165 R14 section tires, no alloy wheels, as it is a mid variant. This is how the headlamps look like. It is a reflector based headlamps. Those are the indicators. Fog lamps also are reflector based. These are not quite powerful, but you can upgrade. This is the Hyundai badge. This is how the front look like. So this is how the key looks like. It's a 3-button key. You can see this key normally in the base variants of the Hyundai cars. Even the Creta also gets these keys Venue as well. So you get lock, unlock and hold. The hold function only opens unlocks the boot. It doesn't open completely. As you can see, it's a flip key. So this is how the key looks like. You don't get push button start, all of these things. We will talk about this as we start the interior section. So this is how the rooftop is. There's the antenna. So let's talk about the interior and let's get in. Now we'll get inside the car. So अब आपको यहाँ पे क्या मिलता है? सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, लॉक मिलता है, ये है आपके विंडोज़ के बटन,
जहाँ पे आपको ऑटो डाउन और अप सिर्फ ड्राइवर साइड पे मिलता है। ये है आपका ORVMs के कंट्रोल करने के फंक्शंस। ये रिट्रैक्टेबल है ऑटोमेटिकली एंड दीज आर इंटरनली एडजस्टेबल। लॉक फॉर द रियर विंडोज़। ये आपका 1 लीटर बॉटल रखने के लिए जगह। यहाँ पे आप और भी कुछ सामान रख सकते हैं। गेट जो है वो आपको बेज एंड ब्लैक के फिनिश में मिलता है। जो बेज का शेड है थोड़ा सा डार्क है। दिस इज़ हाउ द इंटीरियर लुक्स लाइक एंड दिस इज़ द फुटवेल। इट्स क्वाइट डीप एंड इट्स प्रिटी वाइड। नो एज सच प्रॉब्लम्स। अर्गोनॉमिक्स की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ पे प्लास्टिक भी यूज़ किया गया है वो ठीक है। सो लेट्स गेट इन। Please don't mind, I am wearing slippers. I was in a hurry and it's not recommended to drive the cars in slipper, as it is quite it's not good to drive in slippers. Don't wear loose for footwears. And these are the pedals, so no such issues. गैप अच्छा खासा है यहाँ पे आपको डेड पेडल नहीं मिलता है। Now let's close the door. So this is how the interior looks like. This is the steering wheel. यहाँ पे आपको अच्छा खासा बड़ा हॉर्न पैड मिलता है। यहाँ पे आपको म्यूट एंड वॉल्यूम्स के फंक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको आपके टेलीफोनी से रिलेटेड बटन्स मिल जाते हैं। ये आपका ट्रिप को रीसेट करने के बटन्स हैं एंड यहाँ पे मोड है जो आपकी जो यहाँ पे छोटी सी MID दी गई है उसको कंट्रोल करने के लिए। ऐसा कुछ आपका स्पीडोमीटर एंड टाकोमीटर दिखता है। I'm not going into deep because I want to keep this video short and simple, so I'm not going into details. So यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आपके लाइट से रिलेटेड के कंट्रोल्स and this side you get your all the controls for your wipers. This is how the stereo looks like. ये S वेरिएंट है इसलिए इसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 2DIN का ऑडियो सिस्टम मिल जाता है एंड मैनुअल AC दी गई है। एंड दिस इज़ द गियर बॉक्स। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है और यहाँ पे कुछ रखने की जगह। दिस यू कैन हाइड बट एज यहाँ पे वायर लगा हुआ है सो इसे बंद नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द एरिया। कप होल्डर्स जो दिए गए हैं बट इतने वाइड नहीं हैं। यहाँ पे आप अपनी की कुछ भी रख सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं। इसमें आपको हैंड रेस्ट नहीं मिलता है। दिस इज़ हाउ द सीट लुक्स लाइक। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। ऊपर आपको लाइट मिल जाती है। This is your IRVM. It's a manual IRVM and here's your sunshade. यहाँ पे आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता है। This side you get the mirrors but no lights. लाइट यहाँ सेंटर पे ही दी गई है and this is how from the driver's view you get. So इसकी विंडशील्ड और जो भी विंडोज़ है even the ORVMs are pretty wide and big. So यहाँ से आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी and mind you इसकी सीट्स काफ़ी अच्छे लेवल पे कंफर्टेबल है। That's why as I said in the beginning of the video these cars are being highly used by the fleet owners. Ola Ubers में आपने देखा होगा काफ़ी ड्राइवर्स इन गाड़ियों को यूज़ करते हैं एंड क्योंकि ये कंफर्टेबल है। दीज आर लो ऑन मेंटेनेंस दैट्स वाई। सो ये देख सकते हैं आप ग्लव बॉक्स ठीक है, इसमें कुछ ओनर का सामान पड़ा हुआ है सो वी नॉट डिस्टर्ब दिस। यहाँ पे भी आपको बॉटल का आपका रखने का सेक्शन मिल जाता है एंड दिस इज़ हाउ आई एम सिटिंग। अब मैं अपनी ये सीट जो है वो अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ एंड देन आई विल शो यू। नाउ द ड्राइवर सीट इज़ अकॉर्डिंग टू माय ड्राइविंग पोजीशन। लेट्स गेट बैक इन। सो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पे भी आपको सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल सेक्शन मिल जाता है एंड लेट्स गेट इन। इनग्रेस एंड एग्रेस में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स क्वाइट गुड, इतना ज़्यादा भी नहीं है बट ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना मुझे लेग रूम मिल रहा है। ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से है एंड यू कैन सी द फुटवेल। यहाँ पे मैं नीचे पैर रखने की मुझे अच्छी खासी जगह है तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। यहाँ पे आपको आपके कन्वीनियंस के लिए AC के ब्लोअर्स मिल जाते हैं, AC वेंट्स हैं और यह सीट जो है ऑलमोस्ट पूरे पीछे तक है तो देख सकते हैं आप कितना स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे कोई हम्प नहीं है ट्रांसमिशन की सो बीच का पैसेंजर काफ़ी हद तक कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पे आपको पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। ये आपको फ्रंट में नहीं मिलता विच इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग बट क्या कर सकते। सो यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स भी हैं एंड यू इवन गेट द लाइट्स। दे आर सिंपल येलो लाइट्स
ये आपको मिल जाती है। सो आई एम प्रीटी कंफर्टेबल एज यू कैन सी। यहाँ पे मुझे जो हेडरेस्ट मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड शोल्डर रूम इज ऑल्सो इनफ। I guess 2 passengers are comfortable over here. 3 would be a tight one, but if someone kid or a smaller guy is there, you can be comfortable. But for 2 people, it's good. No such issues. So it's quite good. So अब इसका boot space भी check कर लेते हैं. So here is the boot space. यहाँ पे ओनर का सामान पड़ा हुआ है। इट्स अराउंड 407 लीटर्स का बूट स्पेस है। अगर आप इसमें CNG भी फिट कर देते तो आपके पास एक अच्छी खासी जगह बच जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं दी गई है, विच इज़ अ कॉस्ट कटिंग के साथ साथ ये काफ़ी अच्छा भी नहीं लगता है अगर आप अपना बूट पीछे से खोलते हैं एंड एक्सपोज वायर दिखते हैं। बट व्हाट टू डू, दीज आर थिंग्स डन फॉर द कॉस्ट कटिंग। सो दिस इज़ द बूट एरिया, ठीक ठाक है। एंड दीज आर द लाइट्स एंड दिस इज़ अ पेट्रोल वेरिएंट एंड इसमें 43 लीटर्स के आसपास की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। सो नाउ आई एम इनसाइड द कार। अब हम इसको सिटी में चलाएंगे एंड देखेंगे ये कैसी है चलाने में, हाउ आर द अर्गोनॉमिक्स, कैसी है ड्राइव इसकी, गियर शिफ्ट्स कैसे हैं एंड कैसा इंजन का रेस्पॉन्स है। सो लेट्स बिगिन। बट फर्स्ट सेफ्टी। तो मैंने मास्क लगा लिया क्योंकि यहाँ पर मास्क लगाना ज़रूरी है सिटी में भी अगर आप अकेले हैं। एंड यू मस्ट ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट। सो आप सुन सकते हैं कि गाड़ी के अंदर आवाज़ कितनी आती है, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। For your information, this is a 1.2 लीटर इंजन पेट्रोल 4 सिलेंडर। तो आपने सुना होगा कितनी आवाज़ आई। एंड AC का ब्लोअर हम दो पे कर देते हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत AC की आवाज़ है। सो लेट्स बिगिन। इसका जो इनिशियल पिकअप है वो काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली जो 1.2 लीटर वाला इंजन है वो Hyundai ने अपनी ग्रैंड i10, एक्सेंट और अभी भी जो नई वाली आ रही है ऑरा उसमें भी यूज़ किया हुआ है एंड इवन इन द i20। बट वन थिंग्स फॉर श्योर कि ये जो इंजन है आपको कंपैरेटिवली काफ़ी पेपी लगेगा इन द ग्रैंड i10 और इवन द एक्सेंट विच वी आर ड्राइविंग। बट इतना ये पेपी आपको 1.2 लीटर वाला इंजन i20 में नहीं लगेगा। मे बी बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। बॉडी वेट i20 का लगभग थोड़ा सा ज़्यादा होगा, माइनर इफेक्ट होगा बट कंपैरेटिवली ज़्यादा है। एंड द टायर फुटप्रिंट ऑफ द कार। अब इसमें जो टायर्स आते हैं उनका फुटप्रिंट कंपैरेटिवली i20 के फुटप्रिंट से कम है। सो वो एक कारण हो सकता है कि ग्रिपी नेचर की वजह से थोड़ा सा i20 में ये आपको लैगी फील होगा। बट इन दिस इट्स वेरी गुड, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड जैसे ही मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, जो ड्राइविंग सीट से मेरा व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। इवन फ्रॉम द विंडशील्ड और फ्रॉम द साइड विंडोज और फ्रॉम द ORVMs और द IRVMs ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सीट्स आर प्रीटी कंफर्टेबल। ये S वेरिएंट है, मिड वेरिएंट है, इसमें आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट आती है। सो आपको एक प्रॉपर कंफर्ट मिलता है गाड़ी के अंदर। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, द गियर बॉक्स एकदम क्रिस्प है। मतलब एक ही बार में स्लॉट नहीं हो जा रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बिल्कुल आपको क्लंकी फील नहीं होगा, एकदम स्लिक शिफ्ट है, easy to use है। This car is almost 5 years old and it's been driven around almost 42,000 kilometers, but अभी भी एकदम सिल्की स्मूथ है। और ऐसा नहीं है ये जिनकी गाड़ी है उन लोगों ने इसी यूज़र ने इसी पे इस गाड़ी पर से ही सीखा है, बट स्टिल द गियर बॉक्स इज वेरी गुड, इन वेरी गुड कंडीशन। एज सच अभी गियर बॉक्स में ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि आपको एक हैवी हैंड यूज़ करने की ज़रूरत है। एंड इस इंजन एंड इस गाड़ी की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मनूवरेबिलिटी। काफ़ी इजी है सिटी में चलाने के लिए, ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, इसका फुटप्रिंट इतना बड़ा नहीं है, बट स्पेस अंदर अच्छा है। सो आपको इसको चलाने में दिक्कत नहीं होगी। या तो आपको जैसे अगर कहीं पार्क करना है, टाइट पार्किंग स्पॉट है और एल्स काफ़ी भीड़ भरा इलाका है, सो वहाँ पर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टीयरिंग भी काफ़ी हल्का है, बट इट्स गुड, इट वेज अप विद द स्पीड।
जैसे ही आप डबल डिजिट स्पीड्स पे आते हैं स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स अच्छा है. नो, इट्स नॉट मेंट टू बी फॉर फन टू ड्राइव व्हीकल. यू कांट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक पोलो एंड ऑल ऑफ दैट. मतलब इसमें तो और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है. बट एक परफेक्ट फैमिली कार है, स्मॉल कार है और सिटी यूज़ और हाईवे के लिए भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. पिकअप भी गाड़ी का अच्छा है. जो इसका मीट बैंड आपको मतलब जहाँ से आपको अच्छा एक गाड़ी का पंच मिलता है, इट्स अबाउट 1700 टू 2000 RPM के प्लस में जब आप जाते हैं. एंड द गियर बॉक्स आपको अच्छा रिस्पॉन्ड करता है. 3rd 4th गियर्स में काफ़ी अच्छा है. सो एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. आई गेस यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो. आई हैड अ पोल दैट कि मुझे वीडियोज़ कैसे करने चाहिए, छोटे या फिर बड़े. एंड ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि कीप इट बिटवीन 10 to 15 minutes. So I tried to do that and I hope you all like it. So before ending this video, I would request you to please subscribe the channel and even like, share and comment. Please do comment and even like the videos, because YouTube analytics में क्या हो रहा है कि मेरी वीडियोस थोड़ी नीचे जा रही हैं because of the like and comment. जितना ज़्यादा आप लाइक एंड कमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा वीडियो ऊपर तक आएगी और लोगों तक पहुंचेगी. So I would request you to please like, share and subscribe the video. If you like the content, do hit the subscribe button. That's all from my side and bye-bye. Be safe and be at home and take care of yourself. This is signing off from Auto Easy. Bye-bye.